اب تک اپنی نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائے۔ آج کی یہ محفل سنت و عقیقہ کے اہتمام میں خراج عقیدت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ آج یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا عظیم احسان ہے تو اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اپنے کام کی ابتدا جو سنت کی محفل ہوتی ہے اس کے سنت کے طریقے پر کرتے ہیں۔ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، اور کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار ابیار، ہو گئی کس کی نظر طرز سلف سے بیدار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا حضرت پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پاک شریعت اور دائمی قانون اور ہماگیر دین کا تکمیل کا صحیفہ لے کر تشریف لائے، وہ دین و دنیا کا ایک ایسا نگار خانہ ہے، مصلحتوں اور حکمتوں کا ایک ایسا بے غبار آئینہ ہے جس میں فطرت کا جمال بھی ہے اور خیرت کی رہنمائی، اس میں عمل کی دعوت بھی ہے اور فتح و نصرت کی تعلیم بھی، اقبال منزل کی ضمانت بھی ہے اور نیاز عبودیت بھی، بندگی بھی ہے اور سجدہ عبودیت بھی۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں نہ تو لہو و لعب کی کوئی گنجائش ہے اور نہ اس کی اجازت۔ ہمارے سنت کی محفل ہمارے آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ختنہ شدہ نام پریدہ تشریف لائے، ختنہ کیا ہوا، نام پیدا ہوا، اور آج ہم اپنے بچوں کے سنت کی محفل میں سنت کرواتے ہیں، تو یہ کیسی سنت ہے؟ دعوت فطر ہے، یہ کیسی سنت؟ سنت یہ سنت ابراہیمی ہے، اس کے تعلق سے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو اے محبوب، یاد کرو محبوب کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے 4000 سال بعد کا تقریبا یاد کرایا جا رہا ہے۔ محبوب یاد کرو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، یاد تو اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو، بھول گیا ہو۔ میرے نبی بھول سے بھی پاک، اور ہمارے نبی تقریباً 3-4 ہزار سال، 3000 یا 4000 سال بعد حضرت ابراہیم کی دنیا میں تشریف لائے، پھر بھی رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، پتہ چلا کہ میرے نبی گرچہ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 4000 تقریباً سال بعد تشریف لائے، لیکن پہلے سے ہی موجود ہے، سب کچھ ملاحظہ کرنا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربُّهُ، اس کے رب نے بِکَلِمَاتٍ، چند باتوں سے، وہ چند باتیں کیا تھی جس سے حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تھا؟ وہ چند باتیں یہ تھی، اے ابراہیم میں تجھے چند چیزوں کا حکم دیتا ہوں، موش تراشنا،
दाढ़ी को बढ़ाना, सुन्नत करवाना, कंधा करना, मुँहे जेरे नाप तराशना, ये सब चीजें थी जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने आजमाया। कुरान आगे फरमाता फअतम्महुन्ना, तो हजरत इब्राहिम ने उन तमाम को पूरा कर दिया। रब की आजमाइश में पूरे उतरे, और जब रब की आजमाइश में पूरे उतरे तो रब ने आजमाइश में पूरे उतरने के बाद हजरत इब्राहिम ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं आपको लोगों का पेशवा बनाना चाहता हूँ। मैं आपको लोगों का पेशवा बनाना चाहता हूँ। इमामत दो तरीके की है, एक है इमामत सुगरा और एक है इमामत कुबरा। अंबिया की इमामत कुबरा है, और जो हम मस्जिद में इमामत करते हैं इमामत सुगरा है। रब ने फरमाया ए इब्राहिम, मैं आपको इमाम बनाना चाहता हूँ, लोगों का पेशवा बनाना चाहता हूँ, नबी बनाना चाहता हूँ, कायद बनाना चाहता हूँ, दीन का रहबर बनाना चाहता हूँ। जब अता का वक्त हो, जब नवाजिश का वक्त हो, जब कुछ ले हासिल करने का वक्त हो, तो जानते हो सिर्फ अपने लिए लेकर के खामोश नहीं हो जाते, अपने लिए ही लेकर के खामोश नहीं हो जाते। इसकी एक मिसाल पेश करता हूँ। आकाए करीम रऊफ रहीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। राजो नियाज की बातें होती हैं, अब फरमाता है आकाए करीम फरमाते हैं अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम बदनी माली और बाकी इबादतें अल्लाह के लिए, तमाम कौली बेली बदनी इबादतें अल्लाह के लिए हैं। तो रब ने उसके जवाब में फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम। तो आकाए करीम ने सिर्फ अपने लिए सलाम कबूल नहीं किया, फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलाम हम पर और हमारे सारे सालिहीन बंदे पर। पता चला तरीका कार्य है कि जब अता का वक्त हो तो सिर्फ अपने को ही मुस्तफीद तक किया जाए, सिर्फ अपने को ही मुस्तफीद तक किया जाए, सिर्फ खुद ही हासिल न कर लिया जाए, बल्कि अपने साथ साथ और को भी शामिल किया जाए। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह से रब फरमाता है इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ए इब्राहिम मैं आपको लोगों का पेशवा बनाना चाहता हूँ। ऐसे मौके पर हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह खामोश न रहे, रब की मायदानी किया व मिन ज़ुर्रियती, ए रब सिर्फ मुझे ही इमाम न बना, सिर्फ मुझे ही पेशवा न बना, सिर्फ मुझे ही कायद न बना, मेरी ज़ुर्रियत को भी इमाम बना, पेशवा बना, कायद बना। जवाब में रब ने फरमाया ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन, मेरा ये वादा है इमामत, ये मेरा वादा है पेशवाई, और ये मेरा वादा है अंबियाई जो मुझे अता करने वाला हूँ, ज़ालिम का पाएगा। तुझको मैंने जो चंद कलिमात से नवाजा, तुझे जो आजमाया, तूने उससे बुरा कर दिखाया। ये सुन्नत ऐसी है कि तेरे बाद कल कयामत तक जितनी भी उम्मतें आती रहेंगी तमाम में सुन्नतें राय रहेंगी। तो मेरे आका तो सुन्नत ये तशरीफ लाए थे, ये जो हम खतना कराते हैं ये सुन्नत
सुन्नत इब्राहिमी है। और ये एक ऐसी चीज है जो इस्लाम की पहचान है, इस्लाम की सनद है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब का जायजा लेने के बाद ये बात रोज़े रोशन की तरह आया होकर सामने आ जाती है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में, दुनिया के तमाम धर्मों में, दुनिया के तमाम दिनों में सबसे कमसिन और नाउम्र मजहब इस्लाम है। लेकिन अपनी कमसिनी और नाउम्री के बावजूद ये एक नाकाबिले इनकार हकीकत है। इस्लाम ने जो तरक्की की कबूल आम हासिल किया, जो इनकलाबी अजीम बरपा किया, आलमी जोग्राफिया को जो नक्शोनिगार बनाए, दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई अपनी तमाम दस्तावेज के बावजूद इस्लाम की कर रहा है। और आज जबकि मानवी तरक्की का आफताब को पहुंच चुका है, आज दुनिया एक मुट्ठी में कैद होकर रह गई है। लोगों ने सूरज और चांद पर कमंगा डालना शुरू कर दिया है। फिर भी इस हर जमाने में इसके सामने दीवारें खड़ी की, कभी रूम की ताकतों ने, कभी ईरान की ताकतों ने, कभी अफ्रीका और अफ्रीका की ताकतों ने इसके सामने दीवारें खड़ी की, इनके सैलाब को रोकने की कोशिश की। लेकिन इस्लाम अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक के जब खशोखाशात इसके रास्ते में आए तमाम को बहाता रहा। उस दौर को देखिए, जबले कुबैस से लेकर मैदान बदर तक, वादिये उहुद से लेकर वादिये बदर तक, खंदक से लेकर खैबर तक, जुल्म और सितम की हर नई कोशिश, खात्मा इस्लाम की नामनाक मंसूबा बंदियों की मरबूत व मुसलसल जारी थी। लेकिन तारीख की सदाकत अपनी जगह एक इनकलाब पेश कर रहा है। इतनी रुकावटों के बावजूद, इतनी मुज़ाहमतों के बावजूद इस्लाम आज भी उन तमाम खशोखाशात को बहाता हुआ आगे बढ़ता ही रहा। यहाँ तक कि सारी कामयाबी इनके कदमों को चूमने के लिए आगे आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की फितरत है। इस्लाम की कुदरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे इतना ही उभरेगा, जितना ही दबाओगे इतना ही उभरेगा। और एक चीज याद रखिए, ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, दीन में कोई दुश्वारी नहीं। रोशनी, उजाला, रहनुमाई, राहे मुस्तकीम वाज़े हो चुका है गुमराही से। इसलिए अब इस्लाम को किसी रोशनी की जरूरत नहीं। इस्लाम को आ जाए करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मनव्वर व ताबा है। जरूरत इस चीज की है, इस रोशनी में चल करके अपनी जिंदगी को गुजारा जाए। हमारे माशरे का काम सुन्नत के तरीके में हो, और नबी की सुन्नत। एक महफिल है, थोड़ी देर और लूंगा, खत्म कर दूंगा। इसलिए मुझे भी पता है कि छोटे छोटे बच्चे दावत में मौजूद हैं, उन्हें भी खाना है। सुन्नत तरीके की लफ्ज़ सुन्नत यूं तो सूरत, सीरत और अनाज पर जुड़ गया, लेकिन लफ्ज़ सुन्नत का ये लफ्ज़ी माना है। लफ्ज़ सुन्नत का इस्तिलाही माना क्या है? नबी की पैरवी। तीन तरीके की सुन्नत। एक सुन्नत कौली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनक़ूल हुई अहादीस है, वो रिवायत होते हुए सहाबा से, ताबईन से, तबे ताबईन से, इमाम मुजतहिदीन से जो हम तक पहुंची, ये सुन्नत कौली।
सुन्नत फेली है। जो नबी ने किया, जो काम नबी ने किया, वो काम रिवायत के दबाव से जो हम तक पहुंचा, ये सुन्नत फेली है। हजरत इमाम मालिक जब अपनी दरगाह में बैठते, एक हदीस को पढ़ाते पढ़ाते मुस्कुराने लगते, तो फिर रुक जाते और पढ़ाने लगते। 1 लाख शागिर्द आपके दरगाह में होता। एक दिन शागिर्दों ने अर्ज किया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आप जब हदीस को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते जब इस मकाम पर पहुंचते हैं तो ठहर करके मुस्कुराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वजह क्या है? क्या वजह ये है कि मेरे आका ने इस हदीस को बयान किया था तो यहाँ पर ठहर करके मुस्कुराए। अब्दुल्ला इब्न उमर मदीने से बाहर निकलते थे, एक खार झाड़ी के पास जाते, अपने दामन को झाड़ी से लिपटाते, कांटों में उलझाते, फिर सुलझाते, फिर वापस आते। एक दीवानगी वाला काम। किसी ने पूछा, आज का सैयदुल सूफिया है, आज का सहाबा में मकाम सैयदुल सूफिया। अब्दुल्ला इब्न उमर सैयदुल सूफिया थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन थे और अब्दुल्ला इब्न मसूद सैयदुल फुक़हा। आप तो सैयदुल सूफिया हैं सहाबा में। आपसे ऐसी हरकत कि मदीने से बाहर जाएं और कांटे में अपने दामन को उलझाएं, फिर सुलझाएं, फिर वापस आए, समझ में नहीं आता। कहा सुनो, एक मुबारक का वाकया ऐसा है, आकाए करीम तशरीफ ले जा रहे थे, हवाओं ने अटखेलियां की, आपके दोषे मुबारक पर जो चादर थी वो उड़ी और इसी झाड़ी से लिपट गई। आकाए करीम ने उस दामन को उस झाड़ी से अपने चादर को निकाला। मैं जब इस झाड़ी के पास से गुजरता हूँ, आकाए करीम की वो सुन्नत मुझे याद आ जाती है। मैं उठता हूँ, अपने दामन को, अपनी चादर को झाड़ी से लगाता हूँ और फिर खोलता हूँ ताकि आका की सुन्नतें फेली आ जाए। यह है सुन्नतें फेली जो मरफूल होते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल हम तक पहुंचे। ये सुन्नतें फेली है। एक है सुन्नतें कौली और एक है सुन्नतें फेली और एक तीसरी सुन्नत है सुन्नतें तकरीरी। आका ने कहा नहीं, आका ने किया नहीं, किसी सहाबी ने किया कोई काम और वो आका ने देखा और खामोश रहे। आका ने देखा और मना न फरमाया, या आका ने देखने के बाद उस पर इस्तेहसान खुशनुदी जाहिर की। ये सुन्नतें